Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Cant. Today, we are going to start with chapter number 7, Structural Organization in Animals, and today we'll be taking up the topic Animal Tissues. So let's start. Now, before I begin with animal tissues, I want to tell you in brief how animal tissues are different from the plant tissues. Now, the plant tissues are generally made because the plants are stationary, एक ही जगह पर रहते हैं, तो उस हिसाब से ही प्लांट टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है. जबकि क्योंकि एनिमल्स जनरली मोबाइल होते हैं, तो उनका जो टारगेट रहता है ऑब्वियसली मोबिलिटी प्रोवाइड करने का. जैसे आप लोगों को पता है कि एनिमल्स के अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ऐसे ही प्लांट टिश्यूज जनरली सिंपल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि एनिमल टिश्यूज कॉम्प्लेक्सली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. जो प्लांट टिश्यूज हैं उनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज डेड होते हैं, जैसे कि कॉक टिश्यू है, डेड है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो एनिमल्स में है वो लिविंग होते हैं. ग्रोथ जो होती है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होती है, जैसे आपको पता है एपिकल रीजन के अंदर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है या इंटरकैलरी रीजन में होती है. लेकिन ऐसा एनिमल्स के अंदर नहीं है, कुछ लिमिटेड एरियाज में नहीं है, ग्रोथ होती है तो एक देयर इज अ कन्फाइंड ग्रोथ, तो वो सभी में मतलब यूनानिमसली ग्रो करता है. देन प्लांट टिश्यूज की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि एनिमल टिश्यूज में ज्यादा एनर्जी चाहिए. प्लांट्स थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल्स मेच्योरिटी स्टेज पर आकर ग्रो करना बंद कर देते हैं. Animal tissues को we further categorize into four major groups, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So now we'll talk about the origin of these tissues. Epithelial tissues are they have this origin from the ectoderm, endoderm as well as from the mesoderm, while connective tissue have the mesodermal origin. Muscular tissues also have mesodermal origin and nervous tissue have ectodermal origin. Now, we'll talk about the animal tissues and their types. Now, epithelial tissue are further categorized on the basis of the shape, and the functions also are different, like squamous, which are flattened, cuboidal, columnar, ciliated, and glandular. The muscular tissue are further categorized into striated, non-striated, and cardiac. The connective tissues are further grouped under areolar tissue, the dense regular connective tissue, which is further classified into tendons and ligaments, adipose tissue, skeletal tissue, the skeletal tissue which makes up our skeleton, which is generally comprised of cartilage and bone. The cartilage can be hyaline cartilage, fibrous, or it can be calcified. Then there is fluid connective tissue, which is the vascular tissue, which consists of blood and lymph. Now let's talk about them in detail. Now first of all, we are going to start with epithelial tissue. Now, as the word itself suggests, epithelial, in which this word epithelial means the upper covering. So it is basically the covering of the body surface. तो जितने भी हमारा body का surface है, आप सोच सकते हैं कि मतलब हम even हमारी skin या organs की जो coverings हैं, gastrointestinal tract की covering, blood vessels की covering, heart की covering, जितने भी हमारे organs हैं उनकी covering, और उनको ताकि आपस में separate रखना और उनकी covering करना, protection देना, उनमें से सिक्रीशंस को पास ऑन करना, चीजों को फिल्टर करना, ये सारा काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू करते हैं. सो एपिथेलियल टिश्यू जो है जनरली हम बात करते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पोलैरिटी की बात करते हैं, तो एपिथेलियल इस तरह से अरेंज होता है ताकि इनका एक सरफेस जो एक फ्री होता है और दूसरा सरफेस जो होता है एक अटैच्ड होता है टू द बेसल. उसके नीचे एक बेसल मेम्ब्रेन होती है जिसकी हेल्प से ये अटैच्ड रहता है. देन सेलुलर नेचर, बिकॉज बहुत ही फिट होते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कवर कर रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर इनके बीच में गैप्स होंगे तो वहां से कोई भी चीज बिना किसी भी उसके ऊपर कंट्रोल के इट कैन मूव इन एंड आउट, तो इसलिए इनके बीच में कोई भी बीच में गैप्स नहीं होते हैं. देन कनेक्टिव टिश्यू इनको सेपरेट, जैसे मैंने आपको बताया, इनको सपोर्ट करते हैं और इनके नीचे जो मेम्ब्रेन रहती है विच इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. दीज आर अवास्कुलर, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है. रीजनरेशन इनके अंदर कैपेसिटी होती है अगर उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहे तो, और इनमें नर्व्स नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सन्स इन द डीपर लेयर्स. Now, as I told you, they are further grouped under different categories में हम इनको डिवाइड करते हैं. जैसे सिंपल एपिथेलियम को हम डिवाइड करते हैं इनटू स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड
सो दे कैन हैव डिफरेंट शेप्स, लाइक स्क्वामस की अगर हम शेप की बात करें तो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, जबकि क्यूबॉइडल, देखिए नाम से ही सब सजेस्ट कर रहे हैं अपना कि किस तरह का शेप है, क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइड शेप जब रहेगा सेल्स का, दैट विल बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऐसे ही अगर कॉलम लाइक शेप आएगा तो कॉलमनर, एंड इफ दे हैव cilia ऑन द सर्फेस देन दे विल बी कॉल्ड एज ciliated। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, लगता है कि जैसे लेयर्स में अरेंज्ड है, लेकिन एक्चुअली वो लेयर्स में अरेंज्ड नहीं होते हैं, तो सूडो फॉल्स यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड होता है। ऐसे ही कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का यहाँ पर मतलब हो गया जिसके अंदर लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, सो दैट कैन बी स्ट्रेटिफाइड और दैट कैन बी ट्रांजिशनल कंपाउंड। एंड द लास्ट वन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि आपको पता है सिक्रीशंस वगैरह ग्लैंड्स की फॉर्म में सिक्रीट करता है। So just look at the figures of what we were talking about, जो हम बात कर रहे थे, तो एक सिंपल यहाँ पर आप एपिथेलियम देख सकते हैं जिसमें सिंगल लेयर यहाँ पर आपको नजर आ रही है और इसके नीचे यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि कनेक्ट करेगी इसको फर्दर। स्ट्रेटिफाइड जिसके अंदर यहाँ पर यू कैन सी मल्टीपल लेयर्स के अंदर अरेंजमेंट होगा। देन हियर यू कैन सी ट्रांजिशनल। अब ट्रांजिशनल का मतलब क्या हुआ, जिसमें सेल्स जो है वो जनरली राउंडेड है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ऑफ कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रेच कर सके। ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो सूडो स्ट्रेटिफाइड जिसमें लगता है कि बहुत सारी हैं, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग जो सेल्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशंस पर होते हैं, सो दे आर इन टच विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे अपीयर टू बी स्ट्रेटिफाइड बट दे आर नॉट एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड। देन लेट्स टॉक अबाउट स्क्वामस की हमने बात किया, क्यूबॉइडल कॉलमनर की यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो स्क्वामस ये फ्लैटेंड सेल जैसे कि आप देख रहे हैं स्केल के जैसे बिल्कुल थिन होते हैं। क्यूबॉइडल की शेप आप देख सकते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड जैसी आप शेप कह सकते हैं। पिलर लाइक या कॉलम लाइक जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉलमनर। तो सिंपल स्क्वामस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो लंग एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बात करें तो हमारी जो स्किन है, बिकॉज स्किन के अंदर बहुत आपको पता है वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो है आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल क्यूबॉइडल आपको मिलेगा किडनी टिब्यूल्स के अंदर जो कि वहां मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आपको मिलेगा सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। सिंपल कॉलमनर जो आपके टिश्यूज हैं वो मिलेंगे लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर मिलता है मेल यूरेथ्रा में, विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। ट्रांजिशनल जो हमने टिश्यूज की बात की वो मिलते हैं लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ये हेल्प इन एक्सपेंशन, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है और इसमें म्यूकस को मूव ऑन करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द सीलिया विच आर प्रेजेंट। अब सिंपल एपिथेलियम हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स। इट कैन बी सिंपल क्यूबॉइडल, इट कैन बी सिंपल कॉलमनर और इट कैन बी सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इनका लोकेशन हमने अभी डिस्कस किया, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और किडनी टिब्यूल्स में रहते हैं। जो सिलिएटेड टिश्यू है सिंपल कॉलमनर जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है ब्रोंकाई के अंदर और हमारे यूट्रिन ट्यूब्स में, यूटेरस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है ट्रैकिया में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम जिसे मैंने आपको बताया लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, तो इनकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो प्रेजेंट है ईसोफेगस में, माउथ में, वजीना में, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल प्रेजेंट रहेगा स्वेट ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो कि कॉलम की शेप में है लेकिन लेयर्स में अरेंज्ड है, ये प्रेजेंट रहते हैं मेल यूरेथ्रा और कुछ डक्ट्स के अंदर। ऐसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर्स के अंदर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जनरली मैंने आपको बताया जो सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, तो ये प्रेजेंट रहते हैं इन द डक्ट्स, जनरली डक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स में जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स और लिवर में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही ये एंडोक्रीन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं, और मिक्स्ड ग्लैंड जिन्हें हम डुओक्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं उनमें भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पर ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम उनको लाइन करता है एंड इट हेल्प्स इन द सिक्रीशंस। Now, according to the number of the cells, it can be unicellular like goblet cells जो कि secretion करते हैं खुद में ही, and there can be multicellular like they are present in the salivary glands. Now, there are different types of the exocrine glands. Now, depending upon the different structures, they can be simple or they can be compound. जैसे कि यहाँ tubular structure देख सकते हैं आप, तो अगर branching नहीं है, then they are called as the they are simple, and if they have these branching, तो then they are called as the compound.
ऐसे ही एल्वियोलर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एल्वियोलाई अगर सिंपल प्रेजेंट हो सकते हैं या इट कैन बी ब्रांच्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. Then connective tissues. Now we talk about connective tissues. Connective tissues होते हैं, they can be avascular, मतलब liquid fluids की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर फ्लूइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. जो जनरली इनमें नॉन लिविंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है जिसमें कि जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं. तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकता है, उनके आसपास प्रेजेंट हो सकता है. और स्केलेटल टिश्यू जैसे आपको पता है कि आपकी पूरी एक स्केलेटन की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. ऐसे ब्लड एंड टिश्यूज जो है वो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू खुद में ही बताता है कि मैं क्या हूं. I am the one which is connecting the different organs, the different parts of the body, the different tissues to tissues को connect करना, organ to organ connect करना, parts of body को connect करना, ये काम है connective tissue का. तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सपोर्टिंग सराउंडिंग एंड कनेक्टिंग अदर टिश्यूज में हेल्प करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और बॉडी को डिफेंड करता है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो कनेक्टिव टिश्यूज की जैसे हमने बात किया था कि इसके अलग अलग टाइप्स हैं. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आपके पास आ जाते हैं अरियोलर, एडिपोज, व्हाइट फाइब्रस, येलो इलास्टिक एंड रेटिकुलर टिश्यू. सपोर्टिव के अंदर हमारे पास आते हैं कार्टिलेज एंड बोन. देन फ्लूइड टिश्यू के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड के भी आपको पता है कि आगे उनके अंदर ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड के अपने सेल्स हैं, द सेल्स व्हिच आर लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. So first of all, we are going to categorize them into two different groups, that is loose connective tissue and dense connective tissue. Now loose connective tissue are the ones जो आपको नाम से ही थोड़ा सा यहाँ आइडिया हो जाएगा. लूज जिसमें कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सेल्स जो है वो बहुत ही लूजली प्रेजेंट है, लूजली वूवन, जो इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है. एंड ये जनरली कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है अलग अलग टिश्यूज को और रेजिस्ट करता है स्ट्रेन एंड डिस्प्लेसमेंट को. देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा आपको समझ सकते हैं डेंसली प्रेजेंट है और द फाइबर्स में भी रेगुलर या इरेगुलर अरेंज हो सकते हैं. अरियोलर टिश्यू क्या है, जो सबसे सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ही एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है अरियोलर टिश्यू. ये होमोजेनस ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड जिलेटिनस मैट्रिक्स से बना हुआ है. इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स. फाइबर्स इनमें लूजली अरेंज्ड होते हैं. अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. ये अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, तो एक तरह का फिलिंग टिश्यू का काम कर रहे हैं. तो दो ऑर्गन्स के बीच में या कहीं भी जहां पर भी स्पेसेस खाली हैं, तो वहां पर खाली जगह नहीं रहेगी, वहां पर क्या भरा हुआ है, सारा अरियोलर टिश्यू भरा हुआ है. तो ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, दे बाइंड द टिश्यूज टुगेदर, दे engulf द बैक्टीरिया एंड डैमेज्ड एंड डेड सेल्स को engulf करते हैं. हेपारिन एंड हिस्टामाइन रिलीज करते हैं. आपको पता है हेपारिन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंटीकोआगुलेंट है, जबकि हिस्टामाइन क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन को कॉज करता है. देन और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस भी करते हैं. सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरियोलर टिश्यू जो है हमारी स्किन को इलास्टिक बनाते हैं और हमारा जो पुल हो जाती है, अगर कोई पुल हो जाता है कोई स्ट्रैंड, उसको पुल करने में भी हेल्प करते हैं अरियोलर टिश्यू. देन एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा इसके बारे में. तो जनरली एडिपोसाइट सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, जिनमें की फैट का स्टोरेज होता है. तो ये प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट होते हैं. इनमें दो टाइप के एडिपोसाइट्स होते हैं, व्हाइट एडिपोसाइट एंड ब्राउन एडिपोसाइट, जिसमें कि एक सिंगल अगर लार्ज फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट है देन दैट्स कॉल्ड एज द व्हाइट एडिपोसाइट, और जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं देन दे आर कॉल्ड एज ब्राउन एडिपोसाइट्स. अब क्योंकि ये फैट को स्टोर कर रहे हैं और बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है, तो इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये एक फैट का स्टोरेज कर रहे हैं तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, बिकॉज फैट स्टोर्ड है इनके अंदर विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये शॉक अब्सॉर्बर है, क्योंकि एक तरह का स्पॉन्जी एक लेयर दे रही है जिसमें कि शॉक अब्सॉर्बर का काम करते हैं. प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो ये एक इंसुलेशन लेयर का काम करते हैं. रेटिकुलर टिश्यू जिसमें कि स्टेलेट शेप के रेटिकुलर सेल्स होते हैं और इनमें बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं जिनमें कि रेटिकुलर फाइबर्स सिक्रीट होते हैं बाय द रेटिकुलर सेल्स. ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ ग्लैंड्स में, लाइक स्प्लीन, लिवर, बोन मैरोस, थाइमस एंड टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होते हैं. और जनरली इनमें फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस में हेल्प करते हैं. सो दीज आर बेसिकली, जो रेटिकुलर टिश्यू की बात करें
तो रेटिकुलर टिश्यू हमारे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर्स के साथ आपको दिखा रखा है, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर आपको, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर द रेटिकुलर टिश्यू। सो यहाँ पर एपिडर्मिस, हमारी जो एपिडर्मिस जो आपको बताया था लेयर जो कि बाहर की आउटर कवरिंग का काम करती है, उसके नीचे डर्मिस, एंड देन दिस इज द एडिपोज, जिसे हमने बात किया कि बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये फाइब्रोब्लास्ट